اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ درندوں کی بستی چوتھا حصہ، مصنف ابن صفی۔ جولیانا فٹز واٹر نے اطمینان کا سانس لیا کیونکہ نالائقوں کی فہرست میں اس کا نام نہیں تھا، ورنہ اسے تو خدشہ تھا کہ شاید اسے بھی X2 معطل کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نہ کیپٹن جعفری اور سارجن ناشاد پر گرا تھا، کیونکہ انہی دونوں کی وجہ سے اب تک بہیترے بنے بنائے کام بگڑ چکے تھے۔ پھر بھی X2 درگزر کرتا رہا، لیکن ماڈل ٹاؤن کی عمارت ہوشیام لاج والی واردات ایسی نہیں تھی جسے نظر انداز کر دیا جاتا۔ الفانسے اور تھریسیا محض جعفری اور ناشاد کی وجہ سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اگر X2 کے ماتحت کچھ دیر پہلے وہاں پہنچ جاتے تو حالات کا رخ یکسر بدل گیا ہوتا۔ انہیں دیر اس لیے ہوئی تھی کہ راستے میں کیپٹن جعفری اور سارجن ناشاد آپس میں لڑ گئے تھے۔ پہلی بار بھی تھریسیا جعفری ہی کی حماقت کی بنا پر فرار ہوئی اور اس مرتبہ بھی جعفری ہی اس کے نکل جانے کا سبب بنا۔ بہرحال اب سیکرٹ سروس کے ممبران کی ترتیب کچھ اس طرح ہو گئی تھی: جولیانا فٹز واٹر، تنویر اشرف، کیپٹن خاور، لیفٹیننٹ چوہان، لیفٹیننٹ صدیقی، صفدر سعید، سارجنٹ نعمانی۔ 8ویں جگہ خالی تھی۔ جولیانا کو توقع تھی کہ وہ بھی جلد ہی پر ہو جائے گی، لیکن اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی کہ سیکرٹ سروس کا 8واں ممبر عمران ہوگا۔ X2 نے اسے فون پر بتایا، سر سلطان کی سفارش پر فی الحال 8واں ممبر عمران رہے گا۔ عمران؟ جولیانا نے حیرت سے دہرایا، کیا اس نے منظور کر لیا ہے؟ ہاں، دوسری طرف سے جواب ملا۔ خود مجھے بھی اس پر حیرت ہے، اس سے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا جناب، جولیانا نے کہا اور دوسری طرف سے کہکے کی آواز آئی۔ پھر کہا گیا، جولیانا، کہ اب تک تمہاری آنکھیں بند رہی ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں کس طرح اس سے کام لیتا رہا اور وہ میرا ماتحت نہیں تھا؟ میں نے دیکھا ہے اور اس لیے میں نے یہ سوچنے میں مجبور ہوں کہ آپ کی ماتحتی قبول کرنے میں بھی کوئی نہ کوئی چال ہوگی۔ کیا چال ہو سکتی ہے؟ وہ عرصہ دراز سے آپ کو بے نقاب کر دینے کے چکر میں ہے۔ بچہ ہے، جھک مارتا ہے، وہ ذہین ہے میں مانتا ہوں، مگر اتنا بھی نہیں کہ X2 کو بے نقاب کر سکے۔ خیر اس قصے کو چھوڑو، میٹرو ہوٹل کے کمرہ نمبر 16 میں ایک آدمی مقیم ہے، میں اس کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہتر جناب، دوسری بات، کیا تم اسے پسند کرو گی کہ وہاں کا 17واں کمرہ اپنے لیے کرائے پر حاصل کر لو؟ میری پسند کا سوال نہیں، جیسا آپ کہیں گے کیا جائے گا۔ کمرہ خالی ہے، اچھا میں اسے تمہارے لیے بک کرائے دیتا ہوں۔ تم ایک سوٹ کیس میں اپنی ضرورت کی چیزیں رکھو اور اسے لے کر اس طرح ہوٹل پہنچو کہ تمہیں کوئی اس شہر کے باشندہ نہ سمجھ سکے۔ بہت بہتر جناب، میں سمجھ گئی۔ کمرہ بک کرا دیجئے، لیکن مجھے کس وقت وہاں پہنچنا ہے؟ صرف 1 گھنٹہ گزار کر تم وہاں اپنا نام مسز براؤن رجسٹر کراؤ گی، رہائشی پتے کا انتخاب تم پر چھوڑتا ہوں۔ بہت اچھا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جولیانا سوٹ کیس سنبھالنے لگی۔ وہ ناشاد اور جعفری کے لیے مغموم تھی۔ وہ ناکارہ اور برے سہی، لیکن اتنے دونوں تک انہوں نے ساتھ کام کیا تھا، کچھ نہ کچھ انسیت تو ہو گئی تھی۔ پھر وہ عمران کے متعلق سوچنے لگی، اب تو ان سب کی زندگی دشوار کر دے گا۔ اس کی دانست میں وہ ذہین تھا، پھرتیلا تھا، بعض اوقات وہ سب کچھ گزرتا تھا جس کی توقع کسی آدمی سے نہیں کی جا سکتی، لیکن پھر بھی وہ اس قابل نہیں تھا کہ اسے کسی ذمہ دار پوسٹ پر رکھا جاتا۔ وہ کریک تھا، اس لیے اسے کارکردگی کی بنا میں سارجن ناشاد سے بھی بدتر سمجھتی تھی۔ سوٹ کیس سنبھالنے میں 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگے، پھر بقیہ 40 منٹ اس نے عمران کی تقرر ہی کے متعلق سوچنے میں گزار دیے۔ پھر ایک ٹیکسی کر کے میٹرو ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ اس کے لیے 17واں کمرہ مخصوص ہے۔ اس نے 1 ہفتے کا کرایہ ادا کیا اور ایک رپورٹر کے ساتھ کمرے میں آ گئی جس کے متعلق معلومات حاصل کرنی تھی۔ وہ برابر ہی کمرے میں تھا۔ جولیا نے اس کے متعلق پورٹر سے پوچھ گچھ شروع کی، لیکن اس انداز میں جیسے ہر آدمی اپنے پڑوسیوں کے متعلق معلومات فراہم کرنا چاہتا ہے۔ ویٹر کے بیان کے مطابق وہ اسپینی تھا، نام ڈان فریزر بتایا گیا، پچھلے 3 دنوں سے وہاں مقیم تھا اور صرف رات ہی کو باہر نکلتا تھا۔ کھانے یا ناشتے کے لیے وہ کبھی ڈائننگ ہال میں نہیں جاتا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ باہر جاتا اور پھر 3 یا 4 بجے سے پہلے اس کی واپسی نہیں ہوتی تھی۔ جولیا بھی اطمینان سے بیٹھی رہی۔ پھر رات ہوتے ہی وہ ہر آہٹ پر چونکنے لگی۔ تقریباً 8 بجے 16ویں کمرے والا اسپینی ڈان فریزر باہر نکلا اور کمرہ مفصل کر کے زینوں کی طرف چل پڑا۔ جولیا بھی باہر نکل آئی۔ اسے انتظار تھا کہ وہ کم از کم آدھے زینے طے کر لے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ نیچے فٹ پاتھ پر اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ کچھ دور تک پیدل ہی چلتا رہا، پھر ایک ٹیکسی رکوائی۔ جولیا نے سوچا یہ برا ہوا، اگر فوراً ہی دوسری ٹیکسی نہ مل سکی تو تعاقب کا سلسلہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ مخالف سمت سے ایک ٹیکسی آ ہی گئی۔ تعاقب جاری رہا، لیکن جب اگلی ٹیکسی سے شہر سے نکل کر اس ویران سڑک پر ہولی تو جولیا کا دل دھڑکنے لگا۔
कुछ भी हो, से ताकुब तो जारी रखना था क्योंकि ये X2 का हुक्म था। दफतन एक जगह अगली टैक्सी रुक गई और जूलिया ने अपनी टैक्सी के ड्राइवर से कहा, गाड़ी उसे आगे निकालकर रफ्तार बहुत कम कर दो। फिर वो मुड़कर इस टैक्सी को देखने लगी। इसकी टैक्सी के ड्राइवर ने ना सिर्फ रफ्तार कम कर दी बल्कि अगली और पिछली रोशनियां भी गुलती कर दी। तुम बहुत अक्लमंद आदमी होते हो, जूलिया आहिस्ता से बड़बड़ाई, लेकिन वो महसूस कर रही थी कि टैक्सी दाहिनी जानिब मुड़कर झाड़ियों में घुस पड़ी थी। ये क्या कर रहे हो? जूलिया बुखला कर बोली। कुछ नहीं, टैक्सी ड्राइवर ने कहा, आपका ताकुब करने का सलीका सिखा रहा हूं। फिर दफतन जूलिया ने महसूस किया कि किसी ने उसका हैंडबैग हाथ से खींच लिया। अब आप बेबस हैं। ड्राइवर की आवाज फिर उभर आई, आपकी एक मामूली सी लग्जिश भी आपको जहन्नुम में पहुंचा सकती है। जूलिया के हाथ पैर ढीले पड़ गए। ठीक उसी वक्त उसने किसी मोटरसाइकिल का शोर सुना, लेकिन कबल इसके वो चीख सकती, एक हाथ मजबूती से उसके होंठों में जम गया। मोटरसाइकिल करीब ही से गुजर गई। जूलिया में हिलने की भी सकत नहीं थी। फिर उसने महसूस किया कि उसे नीचे उतारने के लिए खींचा जा रहा है। उसने जदोजहद करनी चाहिए लेकिन मुमकिन ना हुआ। आखिर वो दिल ही दिल में X2 को बुरा भला कहने लगी। आखिर वो उसे ऐसी मोहमात पर क्यों भेजता है? जूलिया होश में थी और बखूबी देख रही थी कि दो आदमी उसे उठाए हुए सड़क पार कर रहे थे। उसके मुंह में हलक तक कपड़ा ठूंस दिया गया था। उसके दोनों हाथ उसके काबू में नहीं थे। सड़क से गुजरकर वो बाएं जाने वाली झाड़ियों में घुसे और चलते रहे। जूलिया सोच रही थी कि इस मुलाजमत में कैसी कैसी दुर्गंध बनती है और X2 बिला तकल्लुफ से मौत के मुंह में झोंकना चाहता है। वो तकरीबन 10 मिनट तक चलते रहे। फिर जूलिया के पैर जमीन पर लगे। उसे नीचे उतार दिया गया था और अब वो अंधेरे में नहीं थी। उसे मोमी शम्मू की 3 लुएं नजर आ रही थी और ये फौज का एक बड़ा झोंपड़ा था। यहाँ 6 आदमी थे और इनमें वो भी मौजूद था जिनका ताकुब करती हुई यहाँ तक आई थी। इसके मुंह से कपड़ा निकालो। ये इंतहाई बदशक्ल आदमी था। उसके जिस्म पर कुछ इस किस्म का लिबास था कि जूलिया कहीं और देखती तो उसे एक भक मंगे से ज्यादा ना समझ थी। जूलिया के मुंह से कपड़ा निकाला गया। तुम कौन हो? जूलिया से अंग्रेजी में सवाल किया गया। मैं मिसेस ब्राउन। जूलिया हकलाई। चलो हम तस्लीम किए लेते हैं कि तुम मिसेस ब्राउन हो, बदसूरत आदमी ने कहा। लेकिन तुम डॉन फ्रीजर का ताकुब क्यों कर रही थी? मैं ताकुब नहीं तो, जूलिया ने बेबसी से कहा। ओहो, तुम्हें झूठ बोलने का भी सलीका नहीं, हालांकि तुम जानती हो कि हमारा ही एक आदमी तुम्हें यहाँ तक लाया है। हाँ, मैं सी नोर डॉन फ्रीजर का ताकुब कर रही थी। क्यों? बस यूं ही, ना जाने क्यों मैं उनमें कशिश महसूस करती हूँ। मेरी खुशकिस्मती है सी नूरा। डॉन फ्रीजर मुस्कुराया। दरअसल मुझे स्पेन और स्पेन के बाशिंदों से इश्क है। आहा, वो फूलों और गीतों की सरजमीन है। जूलिया ने मुस्कुरा कर कहा। मैं स्पेन के ख्वाब देखती हूँ। एक बार फिर शुक्रिया सी नूरा। मेरा ख्याल है कि आप मेट्रो में मेरी पड़ोसी थी। हाँ सी नोर फ्रीजर, जब मुझे मालूम हुआ कि मेरा पड़ोसी एक स्पेनी है तो मैं फिर अपने ख्वाबों में डूब गई। वक्त ना बर्बाद करो। बदसूरत आदमी धाड़ा और जूलिया को घूरने लगा। जूलिया अपनी कुव्वतों को मुज्तमा कर चुकी थी और उसे एतमीनान था कि वो आखिरी सांस तक इनका मुकाबला कर सकेगी। फिर वो ये सोच रही थी कि X2 इसकी तरफ से गाफिल नहीं होगा। तुमने डॉन फ्रीजर का ताकुब क्यों किया था? बदसूरत आदमी ने सख्त लहजे में पूछा। हकीकत मैंने बयान कर दी, जूलिया ने अपनी शानों को जुम्बश देकर कहा। यकीन करो या ना करो, तुम यहाँ दफन करती जाओगी और किसी को कानो कान खबर ना होगी। बदसूरत आदमी का लहजा सर्द और खौफजदा कर देने वाला था। जूलिया को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी महसूस हुई और उसने दिल कड़ा करके कहा, तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मैं एक बेसरड़ शहरी हूँ। ताकुब का मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं था जो मैं बयान कर चुकी हूँ और अब सोच रही हूँ कि हर वक्त ख्वाबों में डूबा रहना कितना खतरनाक होता है। इसे जमीन पर गिराकर किसी चौपाई की तरह सिबा कर डालो। बदसूरत आदमी ने अपने साथियों में से एक को मुखातिब किया। ठहरो, खुदा के लिए ठहरो। जूलिया खौफजदा अंदाज में हाथ उठाकर चीखी। तुम लोग आखिर यकीन क्यों नहीं करते? इसी नूरा डॉन फ्रीजर मेरी जान बचाए। मैं क्या कर सकता हूँ? डॉन फ्रीजर ने कहा। आप खुद ही सोच बोलने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं सच बोल रही हूँ सी नूरा। चलो जल्दी करो। बदसूरत आदमी धाड़ा। लेकिन ठीक उसी वक्त वो दोनों आदमी झोंपड़े में दाखिल हुए जो कुछ देर पहले बाहर गए थे। गड्ढा खोदा जा रहा है जनाब, एक ने कहा। ठीक है, बदसूरत आदमी बड़बड़ाया, फिर बोला, इसे बहुत एहतियात से सिबा करना है। यहाँ भी एक गड्ढा खोदा ताकि खून इसमें दबा दिया जाए। एक आदमी ने गोशे से एक छोटी सी कद्दाल उठाई और गड्ढा खोदने लगा। इनमें से एक अपने छुरे की धार देख रहा था और जूलिया का यह आलम था कि उसके जिस्म का एक एक रेशा कांपने लगा था। उसने बदसूरत आदमी की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर बेआबो क्या चट्टानों की सी सख्ती नजर आई। उसकी आंखें कुछ ऐसी थी कि जूलिया उससे रहम की तवक्को नहीं कर सकती थी। बेहतरीन तरीका यह है, बदसूरत आदमी डॉन फ्रीजर से कह रहा था, कि इन सबों को एक एक करके इस तरह खत्म कर दिया जाए। ये पूछने की जरूरत नहीं है कि ये लोग क्या चाहते हैं। जूलिया के होंठ खुश्क हो गए, जबान तालू से जा लगी और हलक में कांटे पड़ने लगे। वो कुछ इस किस्म की थकन महसूस कर रही थी जैसे सैकड़ों मील का लंबा सफर दौड़ कर तय किया हो। वो ये भी समझ रही थी कि वो लोग उनके मुतल्लिक कुछ नहीं जानते और इस किस्म की गुफ्तगू महज इसलिए की जा रही है कि वो सब कुछ उगल दे।
सी नूर। डॉन फ्रीजर ने उससे मुखातिब किया, अगर आप इस वक्त ज़िबा करती गई तो जिंदगी भर आपका मातम करता रहूंगा, तो फिर मुझे बचा लीजिए। जूलिया ने बदवक्त कहा, अगर आप सच बोलें तो ये नामुमकिन भी नहीं है। ओ ठहरो। जूलिया इस आदमी की तरफ हाथ उठाकर चीखी जो एक चमकदार छुरे की धार पर आहिस्ता आहिस्ता उंगली फेर रहा था। रुक जाओ। बदसूरत आदमी ने इन दोनों को मुखातिब किया जो वहां खड़ा खोद रहे थे। जूलिया ने एक तवील सांस लिया और झूठ बोलने के लिए तैयार हो गई। एक ऐसे शख्स ने मुझे इस हरकत पर आमादा किया था जो मुझे अरसा से ब्लैकमेल कर रहा है। वो मिस्टर ब्राउन यानी मेरे शौहर का दोस्त है। उसके पास मेरी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो मेरे लिए तबाहकुन साबित हो सकती हैं। बहरहाल इस ब्लैकमेलर ने मेरी जिंदगी तलख कर रखी है। कहती रहो। बदसूरत आदमी ने सख्त लहजे में कहा। उसने तार देकर मुझे दाइम नगर से यहाँ बुलाया था। उसके इशारों पर नाचने पर मजबूर हूँ। उसने मुझे यहाँ बुलाकर मेट्रो के कमरा नंबर 17 में ठहरने को कहा। कमरे का रिजर्वेशन उसने पहले ही कर लिया था। जूलिया सांस के लिए रुकी और फिर उसने मजबूर किया कि मैं सी नोट डॉन फ्रीजर के मुतल्लिक हर किस्म की मालूमात फराहम करूँ। तुमने अभी तक डॉन फ्रीजर के मुतल्लिक क्या मालूमात बाहम पहुंचाई हैं? अभी कुछ भी नहीं, आज ही तो मैं आई हूं। जूलिया बोली। इस वक्त उसने मुझे फोन पर इतला दी थी कि अगर डॉन फ्रीजर इस वक्त कहीं जाए तो मुझे उसका ताक़ुब करना होगा। तुमने अभी तक इस ब्लैकमेलर को कुछ नहीं बताया? सवाल किया गया। कुछ भी नहीं। जब भी मुझे कुछ मालूम ही नहीं तो मैं क्या बताऊं कि। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। डॉन फ्रीजर और बदसूरत आदमी मानी के इस अंदाज में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जूलिया ने फिर कहा, अब आप बताइए इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं अपना राज छुपाने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। गालिबन इस मरदूद ब्लैकमेलर ने मुझे अच्छी तरह समझने की कोशिश की है। वो जानता है कि मैं बदनामी से बचने के लिए सब कुछ कर गुजरूंगी। वो कब से तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? 2 साल से, जूलिया ने जवाब दिया। और तुमने आज तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की? कैसे करती? वो मुझे डराता धमकाता रहता था। खैर, बदसूरत आदमी ने एक लंबी सांस लेकर कहा, जब तक वो ब्लैकमेलर हमारे हाथ ना आ जाएगा हम तुम्हें नहीं छोड़ सकेंगे। ये तो मौत से भी बदतर है, क्योंकि मैंने अपने शौहर मिस्टर ब्राउन से सिर्फ 3 दिन के लिए कहा था। चौथा दिन मेरे घर की तबाही का दिन होगा, इसलिए मेरा हाल पर रहम कीजिए। हो सकता है कि हम कल ही तुम्हें छोड़ दें, लेकिन इस ब्लैकमेलर को काबू में किए बगैर हम ऐसा ना कर सकेंगे। लिहाजा अब रहम की भीख मांगना हमें गुस्सा दिलाना होगा। जूलिया खामोश हो गई। वैसे उसे खुशी थी कि वो उन्हें झांसा देने में कामयाब हो गई है, लेकिन वो दिल ही दिल में हंस रही थी क्योंकि उसने उन्हें इमरान का नाम और पता बता दिया था। उसकी दानिश में इमरान के फरिश्तों को भी इसका इल्म ना होगा कि जूलियाना फिट्जवाटर क्या करती फिर रही है। फिर उसे ऐसे वैसे भी इत्मीनान था कि इमरान किसी न किसी तरह इन लोगों से निपट ही लेगा। तुम इधर खड़ी हो जाओ। बदसूरत आदमी ने एक तरफ इशारा किया। जूलिया ने चुपचाप तामील की। फिर बदसूरत आदमी ने किसी गैर मुल्की ज़बान में अपने एक साथी से कुछ कहा और दूसरे ही लम्हे उसके थैले से एक कैमरा निकल आया। सीधी खड़ी रहो और कैमरा के लेंस की तरफ देखो, बदसूरत आदमी ने जूलिया से कहा। दूसरा आदमी कैमरा सीधा किए खड़े था। चंद लम्हे पहले फ्लैश का झमाका हुआ और तस्वीर ले ली गई। बैठ जाओ। बदसूरत आदमी एक तरफ पड़े हुए प्याल की जाने में इशारा करता हुआ बोला, हम अभी मालूम कर लेते हैं कि तुम्हारे बयान में कितनी सदाकत है। मालूम कर लीजिए, जूलिया ने लापरवाही से कहा और प्याल पर बैठ गई। दफतन एक आदमी बोला, मेरा ख्याल है इस नाम की आदमी को जानता हूं, मगर वो पुलिस के लिए काम करता है। तुम्हें यकीन है? बदसूरत आदमी उसकी तरफ मुड़ा। जी हाँ, मुझे यकीन है, वो पुलिस के लिए काम करता है। इमरान एक पागल सा आदमी है और साथ ही खतरनाक भी। आप नहीं कह सकते कि वो कब क्या कर बैठेगा। क्यों? बदसूरत आदमी जूलिया को घूरने लगा। भला मैं क्या बता सकती हूँ? मैं तो उसे एक ब्लैकमेलर की हैसियत से जानती हूँ और इसने मुझे अच्छी तरह से तबाह किया है। ये ठीक कह रही है दोस्तों। दफतन झोंपड़े के दरवाजे की तरफ से आवाज आई और वो सब बैक वक्त उछल पड़े। इमरान दरवाजे में खड़ा पलकें झपकाता रहा। उसके दाहिने हाथ में रिवॉल्वर था। यही है, इस आदमी के मुंह से भी इख्तियार निकला जिसने कहा था कि वो इमरान से वाकिफ है। हाँ, मैं ही हूँ। तुम लोग अपने हाथ ऊपर उठा लो। सबने अपने हाथ ऊपर उठा दिए, लेकिन बदसूरत आदमी जूं का तू खड़ा रहा। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी और ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो इमरान के हाथ में दबे हुए रिवॉल्वर की तरफ देख ही ना रहा हो। तुम भी अपने हाथ उठाओ। आहा, शायद तुम मुझे तन्हा समझते हो, इमरान ने कहा। जरा आंखें खोलकर अपने चारों तरफ देखो। बदसूरत आदमी ने इधर उधर देखा। झोंपड़ों के फौज की दीवारों पर कई रिवॉल्वरों की नालें नजर आ रही थी। दूसरी तरफ से मेरे इंतहाई वफादार दोस्त मौजूद हैं। तुम में से अगर किसी ने भी अपनी जगह से जुम्बश की तो अपने पैरों पर खड़ा ना रह सकेगा। बदसूरत आदमी ने भी अपने हाथ उठा लिए। मिसेस ब्लैक, अरे ब्राउन, तुम इनकी टाइयां खोलो और उसके हाथ पुश्त पर बांध दो। जल्दी करो वरना तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। जूलिया चुपचाप आगे बढ़ी और एक एक के हाथ बांधने लगी। जब वो 5 आदमियों के बाद बांध चुकी तो हांफती हुई बोली, इसे किस तरह बांधूं? इसके गले में तो टाई ही नहीं है। इसने बदसूरत आदमी की तरफ इशारा किया। पहले उनकी जेबों से उनके रिवॉल्वर निकाल लो। जूलिया ने उनकी जेबें टटोलनी शुरू कर दी। सिर्फ 2 आदमियों
आदमियों के पास रिवॉल्वर बरामद हुए, बाकी गैर मुसल्लह थे। इनके पास छुरा था, वो पहले ही निकाल चुका था। ओह, तुम तो वो थैला तो भूल ही गई जिसमें कैमरा था। थैला जमीन पर पड़ा हुआ था। जूलिया ने उसकी तलाशी लेने लगी। उसमें कैमरा है और कुछ कागजात और रेशम की डोर का एक बंडल। वाह, तब तो तुम इनके पैर भी बांध सकती हो। इमरान बच्चों की तरह खुश होकर बोला, अब ये काम शुरू कर दो। जूलिया ने धकेल कर जमीन पर गिराने लगी। दोस्तों, इमरान ने उन्हें मुखातिब किया, बेहतरी इसी में है कि चुपचाप अपने हाथ पैर बंधवा लो। मैं बिलाशुबा पुलिस के लिए भी काम करता हूं, लेकिन ये पुलिस का काम नहीं है। तुम्हारा आका खूब समझता है कि ये किसका काम है। जूलिया इन सबों को बांध लेने के बाद फिर इमरान की तरफ मुड़ी। अब इनकी खातिर भी होनी चाहिए। इमरान ने बदसूरत आदमी की तरफ इशारा किया, लेकिन जैसे ही जूलिया उसके करीब पहुंची, उसने उसे बड़ी फुर्ती से पकड़कर इमरान के रिवॉल्वर के सामने कर दिया। मार तो गोली, वो धाड़ा, ये सब बकवास है। चौंपड़े के बाहर कोई भी नहीं है। हाँ, इमरान ने नहायत इत्मीनान से कहा, बाहर कोई भी नहीं है और ये रिवॉल्वर भी खाली है। उन्हें नहायत एहतियात से दीवार के बाहर निकाला गया है, इतनी एहतियात से कि तुम लोगों को खबर भी ना हो सकी। लेकिन मेरे 20 मिनट सर्फ हुए थे। रिवॉल्वर जमीन पर फेंक दो, वरना इसका गला घोंट दूंगा। नहीं, जमीन पर क्यों फेंकूं? मैं उसे बड़ी हिफाजत के साथ जेब में रखूंगा। जैसे ही इमरान ने रिवॉल्वर जेब में रखा, बदसूरत आदमी जूलिया को एक तरफ धकेलकर इमरान पर टूट पड़ा। इमरान उसे हाथों पर रखकर बड़बड़ाया, वाह दोस्त, तू तो गोया तुम उसके मुंतज़िर थे। लेकिन इमरान ने इसका मौका ना दिया कि वो इसके जिस्म के किसी हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले सकता। वो लोग जो जमीन पर बंधे पड़े थे, वो उठने के लिए जोर करने लगे। शायद उन्हें इसलिए भी गुस्सा आया था कि वो अब तक दीवार वाले रिवॉल्वरों के मुतालिक धोखे में रहे थे। दफतन बदसूरत आदमी ने इमरान पर छलांग लगाई और पेट के बल धप से जमीन पर गिरा। फिर कबल उसके कि अपनी जगह से हिल भी सकता, इमरान इस पर खड़ा उसे बुरी तरह रोंद रहा था। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि बदसूरत आदमी चीखने और कराहने के अलावा और कुछ न कर सका। इमरान इस पर से उतरता हुआ बोला, फिर कोशिश करो। लेकिन वो किसी ऐसे सांप की तरह अपना जिस्म जमीन पर पटकता रहा जैसे जिसकी कोई हड्डी चोट से अलग हो गई हो। जूलिया ने इमरान की तरफ देखा और एक ठंडी सी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। ये इस अहमक का चेहरा तो नहीं था जिसे जूलिया बात बात पर उल्लू बनाने की कोशिश करती थी। अहमक इमरान और इस इमरान में जमीन और आसमान का फर्क था। अब चीखना बंद करो, वरना गर्दन शानों से खींचकर बाहर फेंक दूंगा। वो अपने शिकार को घूरता हुआ कुर्राया। दूसरी कैदी साकित तो सामत पड़े रहे। बदसूरत आदमी जमीन पर पड़ा, हाथ पैर फेंकता रहा, लेकिन अब उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता मुज़महिल होती जा रही थी। क्या तुम सचमुच तन्हा हो? जूलिया ने आहिस्ता से पूछा और इमरान इस तरह चौंक पड़ा जैसे अब तक खुद को तन्हा महसूस करता रहा हो। क्या मैं तन्हा हूं? उसने बुखला कर कहा यक बयक। फिर उसके चेहरे पर हमाकत तारी हो गई। तुम इनकी परवरिश करना, मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे पैदा करने की कोशिश करूंगा। इमरान ने संजीदगी से कहा, बस अब तुम यहीं ठहरो, मैं उन्हें एक एक करके गाड़ी तक पहुंचाता हूं। तकरीबन आधे घंटे बाद एक बड़ी कार सुनसान सड़क पर फराटे भर रही थी। इमरान स्टीयरिंग कर रहा था और जूलिया उसके बराबर बैठी हुई थी। मगर तुम यहाँ पहुंचे किस तरह? जूलिया ने पूछा। बस इस तरह कि अपनी मोटरसाइकिल भी यहीं छोड़े जा रहा हूँ। ओ, मुझे याद आ रहा है, शायद मैंने किसी मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनी थी। ज़रूर सुनी होगी। क्या X2 से तुम्हें हिदायत मिली थी? क्या बताऊँ? इमरान मगमूम आवाज़ में बोला। मैं एक बहुत बड़े जंजाल में फंस गया हूँ। कैसा जंजाल? यही X2। यह हकीकत है कि मुझे उसकी ज़रा बराबर भी परवाह नहीं, मगर क्या करूं? आजकल मेरी हालत बकौल कन्फ्यूशियस बहुत पतली है। मगर सुनो, मैं इस तरह नहीं रह सकता जिस तरह तुम लोग रहते हो। मेरे साथ लाजमी तौर पर 2-1 मुलाजिम रहेंगे। X2 से उसकी इजाज़त नहीं मिल सकेगी। ना मिले, क्या मैं इससे कमज़ोर हूँ? खैर, मैं भी देखूंगी। ज़रूर देखना, और जो कुछ नजर आए फिर मुझे भी बताना। जूलिया खामोश हो गई। पिछली निशिस्त पर बदसूरत आदमी होले होले करा रहा था। शायद अब वो होश में आ गया था। 3 बज चुके थे, लेकिन जूलिया भी जाग रही थी और अभी तक मेट्रो होटल के इस कमरे में उसका कयाम था। वो इमरान के मुतालिक सोच रही थी। उसने उसे मेट्रो होटल में उतार दिया था और कैदियों को लिए हुए तानिश मंजिल की तरफ चला गया था। जूलिया सोच रही थी कि कहीं उससे भी इमरान के मातहती में ना रहना पड़े। अभी तक उसके बाद खुद जूलिया ही का नंबर था। सीक्रेट सर्विस के दूसरे मेंबरों तक X2 अहकामात उसकी मार्फत तक पहुंचाने की कोशिश करता था, इसलिए उसका ख्याल था कि उसे सबसे बर्तरी हासिल है। वो काफ़ी देर तक इस मसले पर गौर करती रही, फिर सोने का इरादा कर ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, उसने रिसीवर उठाकर कहा। 17 नंबर। दूसरी तरफ से होटल के ऑपरेटर की आवाज़ आई। मिसेस ब्राउन प्लीज। मिसेस ब्राउन स्पीकिंग। आपकी कॉल है, कनेक्ट कर दीजिए। चंद लम्हों बाद X2 की आवाज़ आई। हेलो मिसेस ब्राउन। ओह यस, हाउ डू यू डू? तुम बाखैरियत हो मिसेस ब्राउन? यस प्लीज। मिसेस ब्राउन, कैटल टी प्लीज। बेहतर। जूलिया ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। कैटल टी का मतलब यह था कि उसे टेलीफोन के बजाय ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू शनीद करनी चाहिए। इसने सूटकेस से सफरी ट्रांसमीटर निकाला और एहतियातन बाथरूम में चली गई। जूलिया ट्रांसमीटर से आवाज़ आई। यस सर, अपने आदमियों से कहो कि जेफरसन स्ट्रीट की सीमा लॉज पर रेड करें। इस इमारत में पाए जाने वाले कुत्तों को भी ना छोड़ा जाए। अगर वहां के मकीनों में से एक आदमी भी बचकर निकल गया तो बहुत सख्ती
से जवाब तलब करूंगा। बहुत बेहतर जनाब, लेकिन क्या इमरान को भी फ़ोन किया जाए? फ़ोन? क्या बक रही हो तुम? वहाँ इस होटल से फ़ोन करोगी? नहीं, किसी पब्लिक फ़ोन बोस से, तनवीर से राब्ता कायम करो, वो सबको मुतल्ला कर देगा। बहुत बेहतर जनाब, उसके बाद तुम वहीं होटल में ठहरोगी। क्या तुम सो रही थी? नहीं जनाब, सोने का इरादा कर रही थी, बस इसके बाद सो जाना। ओवर एंड ऑल गुफ्तगू ख़त्म हुई। वो बाहर निकली और चौराहे की तरफ चल पड़ी, क्योंकि पब्लिक टेलीफोन बूथ चौराहे के करीब ही था। बूथ में पहुंचकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, फिर हुक से रिसीवर निकालकर फ़ोन को टेस्ट किया और उसमें करंट मौजूद था। सब कुछ हुआ, लेकिन वो ना हो सका जिसके लिए वो यहाँ तक आई थी। यके बाद तीसरे हर एक के नंबर डायल किए, लेकिन कहीं से भी जवाब ना मिला। आखिर में इमरान से राब्ता कायम करना चाहा, लेकिन वहाँ भी सन्नाटा था। वो झुंझलाकर बाहर निकल आई। एक्सट्रू ने बहुत जोर देकर कहा था कि इस इमारत पर रेड किया जाए, लेकिन जब कोई भी ना मिल सका तो वो क्या करती। बहरहाल उसने सोचा कि अब जल्द से जल्द एक्सट्रू को उसकी इत्तला हो जानी चाहिए। वो फुटपाथ से नीचे उतर रही थी कि कोई ठंडी सी चीज उसकी गर्दन से आ लगी और वो बेइख्तियार उछल पड़ी। खामोशी से चलते रहो, किसी ने आहिस्ता से कहा, वरना ये रिवॉल्वर है, आइसक्रीम नहीं। जूलिया सन्नाटे में आ गई, लेकिन चलती रही, उसके अलावा कुछ चारा भी नहीं था। आखिर वो एक कार के करीब पहुंची और इसमें बैठने को उसे कहा गया। पिछली नशिस्त पर नामालूम आदमी ने कहा। जूलिया ने खामोशी से तामील की, लेकिन ये हकीकत है कि उस गैर मुतवक्के हादसे पर हवास बाख्ता हो गई थी। नामालूम आदमी भी उसके बराबर जा बैठा था। कार चल पड़ी। इसका मकसद क्या है? कुछ देर बाद जूलिया ने पूछा। अगर मुझे मालूम होता तो जरूर बता देता मोहतरमा। इस आदमी का लहजा बड़ा शरीफाना था। जूलिया हैरान रह गई और ये भी सोच रही थी कि अब क्या होगा। आखिर एक्सट्रू ने किस किस्म का खेल शुरू कर रखा है। कार की खिड़कियों में स्याह पर्दे पड़े हुए थे, इसलिए राह का अंदाजा करना भी महाल था। जूलिया तनबा तकदीर हो बैठी। वैसे भी उसे इत्मीनान था कि एक्सट्रू हजार आंखों से उसकी निगरानी कर रहा होगा। इस रात का एक तजर्बा शाहिद था कि इंतहाई मायूसियों के आलम में भी गैर मुतवक्का तौर पर न सिर्फ उसकी जान बच गई थी, बल्कि वो लोग भी काबू में आ गए थे जो शायद अपनी धमकियों को अमली जामा पहनाने की कुव्वत भी एक फिर उसे इमरान याद आया, जिसने अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया था। कितनी शानदार चाल चली थी। अगर इन लोगों को शुरू में शुबा भी हो जाता कि इमरान तना है तो वो इसकी टिका बोटी कर डालते। फिर एक दूसरा निकता उसके जहन में उभरा। आखिर इमरान को इतने रिवॉल्वर कहाँ से मिल गए थे? अगर वो उन्हें साथ लाया तो फिर यही समझना चाहिए कि एक्सट्रू को भी ये मालूम था कि वो इस झोंपड़े में ले जाएगी। लेकिन अगर उसे इसका इल्म था तो आखिर जूलिया का शिकार सरिया क्यों बनाया गया था? मगर नहीं, ये भी तो मुमकिन है कि उसे सिर्फ जगह ही का इल्म रहा हो, लेकिन ये ना मालूम रहा हो कि इस ग्रोह में कितने और किस किस्म के आदमी हैं। पिछली नशिस्त का दरवाजा खुला और उसे नीचे उतरने को कहा गया। जूलिया चुपचाप उतर आई। वो किसी इमारत के कंपाउंड में थी जिसके गिर्द गिर्द आदम आ दीवारें थी। जूलिया के दाएं बाएं दो आदमी चल रहे थे, लेकिन उनके हाथ खाली थे और अब वो अपनी गर्दन पर लोहे की ठंडक भी नहीं महसूस कर रही थी। वो इमारत में दाखिल हुए और मुतअद्दिद कमरों से गुजरती हुई हाल में आए, लेकिन जूलिया को इन दोनों आदमियों के अलावा और कोई दिखाई ना दिया। तशरीफ रखिए मोहतरमा, एक आदमी ने एक आराम कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा। और फिर थक गई हूँ कि आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? जूलिया ने पूछा। बस यूं ही, दूसरा आदमी मुस्कुराया। कुछ देर मिल बैठेंगे? आप कौन सी शराब पसंद करती हैं? मुझे हर किस्म की शराब नापसंद है। मगर ओह, ये बड़ी अजीब बात है। पहले ने कहा। नहीं, बेहतरी शरीफ औरतें नहीं पहनती, बेहतरी शरीफ औरतें नहीं पीती। दूसरा बोला। फिर ये पूछ रही थी कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आप परेशान ना हो, हम दोनों शरीफ आदमी हैं। आखिर मतलब क्या है? जूलिया झुंझला गई। कोई खास मतलब नहीं। अगर आपको नींद आ रही है तो बेतकल्लुफ सो जाइएगा। मैं चीखना शुरू कर दूंगी। हम किसी मुहज्जब और बाइज्जत खातून से इसकी तवक्को नहीं रख सकते। अजीब आदमी हैं आप लोग। दोनों खामोश रहे। वो हद दर्जा संजीदा किस्म के लोग मालूम होते थे और कतई बेसरर। जूलिया मुतैयर हुए बगैर ना रह सकी, लेकिन ये तिलिस्म जल्दी टूट गया। अब उसे मालूम हुआ कि वो यहाँ क्यों लाई गई है, क्योंकि हाल में 6 आदमियों की एक मुख्तसर सी कितार दाखिल हुई, जिसके पीछे 2 आदमी टॉमी गने लिए हुए चल रहे थे। इन 6 आदमियों के हाथों ऊपर उठा रखे थे और इमरान सबसे आगे था। जूलिया एक ठंडी सांस लेकर रह गई। कुछ देर पहले एक्सट्रू ने जो जाल इन लोगों के लिए बिछाया था, इनके साथी इस किस्म के एक दूसरे जाल में आ फंसे थे। हालांकि दूसरी बार भी एक्सट्रू को यही तवक्को रही थी कि उसका बिछाया हुआ जाल बकिया मुजरिमों को फांसने के लिए कारआमद साबित होगा। इन 2 आदमियों में से एक ने कहका लगाया जो जूलिया को यहाँ लाए थे। क्यों दोस्तों, इस बार खुद फंस गए ना आखिर? अरे जरा जबान संभाल कर। इमरान दीदी निचाकर बोला। तुम लोग खतरनाक किस्म के उठाईगीर मालूम होते हो। पहले मेरी बीवी को पकड़ लाए और अब हमें। तुम लोगों की पुश्त पर कौन है? इस आदमी ने इमरान से पूछा। दीवार। इमरान पीछे मुड़कर सीधा होता हुआ बोला। अच्छी बात है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे 6 आदमियों के इवज तुम सातों बुरे नहीं रहोगे, लेकिन मुझे इस नन्ही मुन्नी हसीन सी औरत पर रहम आता है। एक खबरदार, अगर तुमने मेरी बीवी के हुस्न की तारीफ की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम उसे फैलाना चाहते हो, फिसलाना चाहते हो। इस आदमी ने इन दोनों को इशारा किया जिनके हाथों में टॉमी गने थी। वो सामने आ गए और गन्नों का रुख इमरान वगैरह की तरफ कर दिया। ठहरो, इमरान हाथ उठाकर बोला। आखिर ये सजा किस बिना पर दी
جا رہی ہے؟ پہلے تمہارے کچھ ساتھی میری بیوی کو پکڑ کر لے گئے، انہیں سمجھا بجھا کر راضی کیا، تو اب تم لوگ لے اڑے۔ اگر یہ تمہیں اتنی پسند ہے تو میں طلاق دیے دیتا ہوں، تم باقاعدہ طور پر اس سے شادی کر لو، پھولو پھلو اور مجھے بھی دیکھ کر خوشی ہو۔ دفتن ہال کی دیوار سے لگی ہوئی ایک گھنٹی بول پڑی۔ وہ سب بری طرح چونکے، لیکن قبل اس کے ٹامی گنوں والے دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوتے صفدر اور عمران ان پر چھلانگیں لگائے۔ ٹھٹ بے شمار گولیاں دیواروں اور چھت سے ٹکرائی۔ عمران ٹامی گن چھین چکا تھا اور صفدر ابھی تک دوسرے آدمی سے لپٹا ہوا تھا۔ بس کھیل ختم۔ عمران دھاڑا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھا اور تم سارجنٹ نعمانی دیکھو باہر کون ہے، لیفٹیننٹ چوہان تم بھی جاؤ۔ وہ دونوں چلے گئے۔ اتنی دیر میں صفدر بھی دوسرے آدمی سے ٹامی گن چھین چکا تھا۔ ان چاروں کو باندھ دو، عمران کو رایا۔ صفدر تم بڑے شاندار رہے، گریٹ۔ ان چاروں کی ہتھکڑیاں لگائی گئی اور کچھ دیر بعد چوہان نعمانی ایک دبلے پتلے اور متکوک سے آدمی کو پکڑے ہوئے اندر آئے۔ قیدیوں میں سے ایک اسے دیکھ کر دھاڑا، اس سور کے بچے گھنٹی کیوں بجائی تھی؟ مگر سور کا بچہ صرف ہامتا رہا۔ جولیا ہوٹل سے اپنے فلیٹ میں آ گئی تھی۔ وہ صبح 10 بجے بستر پر جو گری تو 4 بجے شام سے پہلے اس کی آنکھیں نہ کھل سکی۔ پچھلی رات کے واقعات اسے خواب کی طرح یاد آ رہے تھے اور اب ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ان سے ان کی صحت پر یقین ہی نہ آ سکے گا۔ ذہن پر اسی قسم کے اثرات محسوس ہو رہے تھے جو کسی ڈراؤنے خواب کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اتنا سوچنے کے بعد اور پھر اس کی طبیعت کچھ گری گری سی تھی۔ 8 بجے فون کی گھنٹی بجی اور جولیا سر سے پیر تک لرز گئی۔ پچھلی رات کے تجربات نے اس کے اعصاب پر اچھا اثر نہیں ڈالا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ X2 ہی کا فون ہوگا اور آج رات پھر۔ بہرحال اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے X2 کی بھرائی ہوئی آواز سنائی تھی۔ تم سو چکی؟ وہ کہہ رہا تھا۔ یس سر، بس اب جاگ رہی ہوں۔ پچھلی رات کے تجربات کیسے رہے؟ بھیانک اور غیر متوقع۔ دوسری طرف سے ہلکا سا کہکا سنائی دیا اور کہا کیا عمران بڑا اچھا جا رہا ہے جولی، نہ تو ابھی تک وہ مجھ سے الجھا ہے اور نہ اس کی وجہ سے کوئی کام بگڑا ہے۔ چھونپڑے والے واقعہ میں تو اس نے کمال ہی کر دیا۔ وہ تنہا بھی درجنوں پر بھاری پڑتا ہے۔ ایسی ہی سوچ بوجھ رکھنے والے لوگ مجھے پسند ہیں۔ اور ہاں، یہ صفدر سعید بھی کام کا لڑاکا ہے۔ اسے اتنی اچھی توقعات نہیں تھی اور یہ تمہارے ملٹری کے ریٹائرڈ آفیسر تو بالکل ہی ناکارہ ثابت ہو رہے ہیں۔ میں ان سب کو چھاڑ دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ ان لوگوں کو عمران کے ہی ذریعے گورن کریں گے۔ نہیں، تمہاری حیثیت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ عمران کو کوئی ذمہ داری نہیں سونپ سکتا کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ جولیا نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر بولی، لیکن یہ قصہ میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ اب یہ قصہ بہت طویل ہو گیا ہے جولی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، اور ہمیں جلد ہی اس کا تدراک کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے ہمیں اس کے لیے سفر بھی کرنا پڑے۔ یہ لوگ ایک مغربی ملک کے ایجنٹ ثابت ہوئے ہیں۔ کاغذات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مرکز آزاد سرحدی علاقہ شکرال ہے، لیکن یہ شکرال کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ہمیں اس علاقے میں کوئی شکایت نہیں رہی۔ وہ تو ایک خطرناک علاقہ ہے جناب، جولیا نے کہا۔ ہے، لیکن اپنی حدود کے اندر۔ ہمسایہ ممالک سے وہ صرف مویشیوں کی تجارت کرتے ہیں اور اسی پر ان کی زندگی کا انحصار ہے۔ کیا وہ ہمارے ملک کے خلاف کسی سازش میں حصہ لے رہے ہیں؟ یقیناً۔ ان لوگوں کے پاس جو کاغذات برآمد ہوئے ہیں ان سے یہی اندازہ ہوتا ہے۔ فی الحال ان کا پروگرام یہ تھا کہ ایک مغربی ملک سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں، اس لیے وہ کام کر رہے تھے۔ اور وہ اسپینی جو میٹرو میں مقیم تھا دراصل شکرال ہی کا باشندہ ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک اور جتنے بھی گرفتار ہو سکے ہیں ویسے ہی ہیں۔ اسپینی سے آپ نے بہت کچھ معلوم کیا ہوگا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے اپنے ہونٹ سی لیے ہیں۔ تو پھر ہم اس سفر پر کب روانہ ہوں گے؟ میں ابھی اس کے متعلق غور کر رہا ہوں۔ اس میں کئی دشواریاں ہیں لیکن یہ بہت ضروری بھی ہے۔ اگر شکرال اس قسم کی سازشوں کا مرکز بنتا رہا تو ہمیں ہر وقت خطرات سے دوچار رہنا پڑے گا۔ یہ سفر یقیناً بہت مشکل ہوگا، مشکل سے بھی کچھ زیادہ۔ خیر، اس کے متعلق تو کچھ سوچنا ہی نہ چاہیے کیونکہ سفر تو ہر حال میں کرنا ہی پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ شکرال میں داخلے کی صورت کیا ہوگی؟ کیوں؟ کیا اس میں کوئی دشواری پیش آئے گی؟ بات یہ ہے کہ وہاں اجنبی لوگ آسانی سے پہچان لیے جائیں گے۔ میک اپ، عقل استعمال کرو۔ کیا تم شکرالی بول سکو گی؟ نہیں جناب۔ پھر میک اپ کس کام کا؟ کیا گونگوں کی ایک پوری ٹیم وہاں کوئی بستی بسانے جائے گی؟ یقیناً دشواری ہوگی جناب۔ تمہارے ساتھیوں میں سے صرف 2 آدمی اچھی طرح شکرالی بول اور سمجھ سکتے ہیں، عمران اور صفدر سعید۔ اور تو کیا اسٹاف میں حالیہ تبدیلیوں کی وجہ یہی ہے؟ ہاں، یہی سمجھ لو۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کو اس سازش کا علم بہت پہلے ہو چکا تھا۔ یہی بات ہے۔ بہت دن ہوئے کانوں میں بھنک پڑی تھی۔ پھر جب ڈان فریزر پر نظر پڑی تو مجھے چونکنا پڑا۔ وہ اسپینی ضرور بول سکتا ہے لیکن اسپین کا باشندہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی خد و خلق شکرالیوں کی سے ہے۔ البتہ ان میں ہلکی سی جھلک اس قسم کی ضرور ملتی ہے جس کی بنا پر اسپینی ہونے کا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ تو کیا آپ کی دانست میں ان کا پورا گروہ گرفتار ہو چکا ہوگا؟ کس حد تک بھی یہ سمجھا جا سکتا ہے، مگر یقین کے ساتھ کوئی حکم لانا درست نہ ہوگا۔ البتہ اگر ڈان فریزر کے ہونٹ کھل سکتے تو لازمی طور پر تصدیق ہو جاتی۔
اچھا خیر، اس سلسلے میں مزید غور کرنے کے بعد تمہیں اطلاع دی جائے گی۔ فی الحال تم صفدر کو فون کرو اور عمران سے مل لے۔ بہت بہتر جناب، جولیا نے کہا اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عمران آرام دہ کرسی پر پڑا اونگ رہا تھا، مگر وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اونگ رہا تھا۔ ممکن ہے اس وقت اس پر 14 طبق روشن ہو رہے ہوں، کیونکہ اس کے ظاہر سے اس کے متعلق کوئی اندازہ لگا لینا آسان کام نہیں تھا۔ دفتن کال بیل کی آواز سے چونک پڑا۔ دروازہ اندر سے بولٹ نہیں تھا، اس لیے بھرائی ہوئی آواز میں کہا آ جاؤ۔ دروازہ کھلا، اندر صفدر سعید اندر داخل ہوا اور عمران اسی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار ملنے والا اتفاق ہوا ہو اسے۔ معاف کیجئے گا، میں آپ کو پہچانا نہیں، اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے یادداشت پر زور دے رہا ہو۔ ارے، وہ مسکرا کر بولا، میں صفدر سعید ہوں۔ لا حول ولا قوت، عمران نے جلدی سے کہا، میں عبد الوحید سمجھا تھا۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ غالباً ہم لوگ پچھلے سال میلہ اسپاؤں وہاں مویشیاں میں ملے تھے۔ ارے بھائی صاحب، ابھی پچھلی ہی رات کی بات ہے کہ ہم دونوں ایک مہم میں شریک تھے۔ نہیں، عمران نے حیرت سے کہا اور 3 بار آنکھیں مل کر پھر صفدر سعید کی طرف دیکھا۔ ٹھیک، مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے میں آپ کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ نہیں عمران صاحب، صفدر ہنس کر سر ہلاتا ہوا بولا، میں اس چکر میں نہیں آ سکتا جس نے آپ کو پچھلی رات ان لوگوں کے مقابلے پر نہ دیکھا ہو۔ وہ آپ کو یقیناً کوئی بھولا بھالا بچہ سمجھ سکتا ہے۔ اوہ میرے خدا، اب یاد آیا پچھلی رات ہم دونوں گرینڈ میں پنگ پونگ کھیل رہے تھے۔ خیر، میں آپ کی یادداشت کو چیلنج کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس وقت میں X2 کے حکم سے یہاں پہنچا ہوں۔ اوہ اچھا، X2 یہ ایک نئی بیماری ہے جس نے آج کل مجھے آ دبوچا ہے۔ کہیے کیا بات ہے؟ معلوم یہ ہوا تھا کہ بات آپ ہی سے معلوم ہوگی۔ ارے ٹھہریے، دیکھیے میں اپنی ٹیبل ڈائری دیکھنے کے بعد ہی کچھ کہہ سکوں گا۔ مجھے دراصل بھول جانے کا مرض ہے، لہٰذا روزانہ کا پروگرام ایک دن قبل ہی نوٹ کر لیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر رائٹنگ ٹیبل پر آیا اور ٹیبل ڈائری اٹھا کر ورگردانی کرنے لگا۔ پھر وہ صفحے پر نظر جما کر بڑبڑایا، گوبھی، ٹماٹر، آلو، مچھلی کا شوربہ، مٹن چاپس۔ ہاں یہ کیا؟ او لا حول ولا قوت، یہ تو دوپہر کے کھانے کے متعلق تھا۔ دوپہر کا کھانا بڑی اہم چیز ہے مسٹر صفدر بول رہا ہوں۔ صفدر بول پڑا، اوہ معاف کیجیے گا مسٹر صفدر، میں نے پرسوں آپ سے عرض کیا تھا کہ مجھے بھول جانے کا مرض ہے۔ نہیں، یہ تو آپ نے ابھی کہا تھا۔ ہو سکتا ہے، مگر مجھے یاد آ رہا ہے کہ پرسوں کہا تھا۔ خیر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پڑتا ہے، پتہ نہیں۔ صفدر پھر ہنسنے لگا، آپ بہت دلچسپ آدمی ہیں عمران صاحب۔ ہاں تو ابھی ہم کس مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے؟ مسئلہ تو آپ ہی بتائیں گے، آخر X2 نے مجھے آپ کے پاس کیوں بھیجا ہے؟ پھر وہی X2۔ ہاں ٹھیک یاد آیا، X2 کا خیال ہے ہمیں شکرال کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ ہاں یہ تو سبھی کو معلوم ہے۔ پھر مگر کیا ہم میں سے کوئی شکرالی بول سکتا ہے؟ میں اپنے متعلق یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں بول سکوں گا۔ کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ عمران نے شکرالی زبان میں سوال کیا۔ ہیں، آپ بھی بول سکتے ہیں؟ صفدر نے شکرالی ہی میں حیرت سے ظاہر کی، مگر مسٹر صفدر مجھے افسوس ہے کہ آپ لہجے پر قاطع نہیں، اور مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے میں کسی شکرالی ہی سے گفتگو کر رہا ہوں۔ خیر، عمران ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، محنت برباد نہیں ہوئی۔ لہجوں پر بھی قادر ہونا بڑی مشکل بات ہے۔ صفدر سر ہلا کر بولا، آپ اس سے بھی واقف ہوں گے کہ شکرال کتنی خطرناک جگہ ہے۔ جی ہاں میں جانتا ہوں، صفدر بولا۔ سوال یہ ہے کہ وہاں داخلے کے لیے بہانہ بھی تو چاہیے۔ 7 مرد اور 1 عورت، جن میں سے صرف 2 شکرالی زبان بول سکتے ہیں۔ بقیہ کا کیا بنے گا؟ چونکہ کبھی اجنبی ادھر کا رخ بھی نہیں کرتے، اس لیے ہم ہر وقت خطرات سے دوچار رہیں گے۔ کیا خیال ہے؟ درست ہے، ان لوگوں کا داخلہ یقیناً خطرناک نتائج کا باعث ہوگا جو شکرالی نہیں بول سکتے۔ بس ایک تدبیر ہے۔ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، مگر وقت طلب ہمارے لیے بہتری نہیں، الجھنیں پیدا ہو جانا۔ کیا تدبیر ہے؟ شکرالی کھیل تماشوں کے شائق ہیں، کیوں نہ ہم ایک چھوٹا سا سرکس ترتیب دیں؟ عمران بڑبڑایا، سرکس کے لیے اور زیادہ آدمیوں کی ضرورت آئے گی، اور پھر سامان بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ سامان اور آدمیوں کی فکر نہ کرو، وہ سب مہیا ہو جائیں گے۔ حکومت اس مسئلہ پر بہت بڑی رقم صرف کرنے پر تیار ہے، تب پھر کوئی دشواری نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس صورت میں بھی اگر ہم براہ راست شکرال میں گھستے چلے گئے تو یقیناً ہمیں شبے کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اسے یوں سمجھیے نا کہ خود شکرالیوں میں کس قسم کی سازش کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ سیدھے سادے لوگ ہیں اور ان کی انگلیاں صرف رائفلوں کے ٹریگروں پر چلنا جانتی ہیں۔ وہ للکار کر آپ کے جسم چھلنی کر دیں گے۔ یہ بھی درست ہے، لیکن اگر وہ خود ہی زبردستی ہمیں شکرال لے جائیں تو کیسی رہے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ صفدر نے کہا۔ ممکن ہے، عمران بولا، ہم یہ ظاہر کریں گے کہ ہم شکرال کی سرحد سے گزر کر دوسرے ملک میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ صفدر چند لمحے خاموشی سے عمران کی طرف دیکھتا رہا اور پھر بولا، میں اب بھی نہیں سمجھا۔ ہم مکلاک سرحد سے لگے ہوئے چلتے رہیں اور پھر شمال کی طرف مڑ جائیں
ठहरो, मेरे पास नक्शा है। और इमरान उठता हुआ बोला और उसने एक अलमारी खोलकर एक चार्ट निकाला और उसे मेज़ पर फैला दिया। ये इधर ये मैकलाक, ये तीर का निशान शुमाल की तरफ इशारा कर रहा है। ये इस जगह सुर्ख निशान से हम मुड़ेंगे और शायद 2 या 3 मील चलने के बाद हमें शिकराल की सरहद में दाखिल होना पड़ेगा। यहाँ से हमारा रुख शुमाल मशरिक की तरफ हो जाएगा और हम शिकराल की आबादी में दाखिल हुए बगैर शुमाल मशरिक की तरफ चलते रहेंगे। इस हिस्से में शिकराल की चरागाहें हैं। यहाँ लाजमी तौर पर शिकरालियों से मुठभेड़ और हो जाएगी और फिर उसके बाद के मसाइल मुझ पर छोड़ दो। है तदबीर जानदार, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो हमें पकड़ ही ले जाए। सफदर ने कहा, ये मुझ पर छोड़ दिया जाए, इसके लिए किसी किस्म की उलझन बेकार है। ये तजवीज़ इसकी छोकरी के जरिए X2 तक पहुंचा दी जाए तो बेहतर है। छोकरी? सफदर ने हैरत से दोहराया। हाँ, वो क्या नाम है? दनूलिया। ओह, जूलिया। हाँ हाँ हाँ, दनूलिया। कमाल है। मुझे ये लड़की इतनी पसंद है कि अगर उसकी कोई बहन होती तो मैं उससे शादी कर लेता। वो खुद भी तो गैर शादीशुदा है। सफदर अपनी एक आंख दबाकर मुस्कुराया। है नहीं, इमरान ने हैरत से कहा। हाँ, खुदा की कसम, लाहौल, मैं अभी तक यही समझता रहा कि वो गैर शादीशुदा है। इतने में सुलेमान आकर खड़ा। Like, comment, share, press the bell icon.